ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ یو سی کیٹل کالونی ملیر مورخہ 12 اپریل 2026 یو سی کیٹل کالونی ملیر کے وارڈ نمبر 3 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شاندار عید ملن تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی پارٹی کے سرکردہ رہنما بشیر بٹ نے کی۔ تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی PS 86 ضلع ملیر کے صدر، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری کے چیئرمین جناب نذیر احمد بھٹو نے خصوصی شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کیا۔ تقریب میں آمد پہ چیئرمین نذیر احمد بھٹو کا پارٹی عہدیداران، کارکنان، علاقہ مکینوں کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ جیالوں نے نعروں اور والہانہ محبت کے ساتھ اپنی قائد کا خیر مقدم کیا، جبکہ علاقے بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے پروگرام کو بھرپور کامیاب بنایا۔ اس موقع پہ پیپلز پارٹی کے مخلص کارکنوں، بینس کالونی کے معروف شخصیت حاجی فیروز خان نے چیئرمین نذیر احمد بھٹو سے ملاقات کی، انہیں محبت بھرا بوسہ دیا اور ان کی کامیابی کامرانی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی۔ اس پہ تقریب کا ماحول مزید جذباتی اور پرجوش ہو گیا۔ تقریب میں یو سی کیٹل کالونی کے وائس چیئرمین عبدالستار حمایتی، کونسلر کمال نظر، معزز شخصیت محمد صدیق حمایتی اور بھائی جان مولانا عبدالرزاق لغاری، ملک کریم الدین رحمت اللہ تعالانی، حافظ عبدالوہاب سیٹھار، بشیر بٹ، کیسر بٹ، محمد علی تنولی، رحمت اللہ حمایتی، ممتاز حمایتی، الطاف حمایتی، وزیر علی حمایتی سمیت دیگر معززین کارکنان بھی موجود تھے۔ اس موقع پہ روزنامہ حمایتی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے پارٹی کو مزید مضبوط بنانے اور منظم انداز میں آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا، باہمی اتحاد و یکجہتی پہ زور دیا۔ شرکاء نے چیئرمین نذیر احمد بھٹو کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے علاقے میں نمایاں ترقیاتی کام کروائے ہیں اور عوامی مسائل کے حل میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے اس بات پہ اعتراف کیا کہ تمام کونسلرز بالخصوص عبدالستار حمایتی اور کمال نظر ہر مشکل وقت میں عوام کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ مزید برآں نوجوانوں کی ایک نئی ٹیم کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا، جس میں وسیم خان ولد حاجی فیروز، ملک زبیر، باسط تنولی، عامر بٹ، احمد خان، وقاص تنولی، عامر عباسی، دلاور اوان شامل ہیں۔ تقریب کے دوران حسبہ ویلفیئر کے حاجی غلام علی سیٹھار سے بھی ملاقات کی گئی، جبکہ ان کے صاحبزادے وہاب نے اسٹیج پہ آ کے نوجوانوں کی کارکردگی کو سراہا، ان کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ آخر میں تمام مقررین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے عوامی خدمت کا سفر جاری رکھا جائے گا اور علاقے کی ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں مزید تیز کی جائیں گی۔ رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز۔ آج عید ملن پارٹی ہے اور بٹ برادران کی طرف سے اور جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے دوست، عید ملن پارٹی آج تو کوئی بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، باتیں تو بہت ہیں علاقے کے حوالے سے، کام کے حوالے سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت چیزیں ہیں بات کرنے کے لیے، مگر آج ٹائم بہت کم ہے کیونکہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ نماز کے لیے جائیں گے، اور بھی دوست ہیں، جماعت کا ٹائم ہے۔ اور میں بٹ برادران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں آج دعوت دی، اور نذیر احمد بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن کے، اور سب کے ہم شکر گزار ہیں۔ جنگ آپ نے لڑی اور آپ کو ہٹایا گیا، ٹھیک ہے۔ مختصر کرتے ہوئے میں آگے پروگرام کو ختم کروں گا اپنی بات کو، اور حاجی ریاض چلانی صاحب سے گزارش ہے کہ وہاں ہمارے بڑے اپنی مختصر بات کریں۔ اور یہ سامنے بھی میرے معززین اور تمام جیالوں، ورکروں اور معززین علاقہ، اور خصوصی بشیر بٹ صاحب، اور میں خصوصی طور پہ وغیرہ فیصل ٹالانی کو خوش آمدید کہتا ہوں جس پروگرام میں آئے، ان کی مہربانی۔ جی بھٹو، ہم اس اسٹیج پر آج بھی کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے تھے انشاءاللہ، اور آتے وقت بھی کھڑے رہیں گے۔ ہمارا کھڑے تعالیٰ کہتے ہوں، میں ان کو رحمت اللہ تعالیٰ کہتا ہوں، اور اس کے بعد یہ وڈیرے کونسلہ گوٹ کے وڈیرے ہیں اور سیٹھار صاحب ہیں۔ کل آنے والا وقت ہمارے کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ آپ کے درمیان آئیں، ووٹ مانگنے آئیں تو ان کو مایوسی نہ ہو، اس کو شرمندگی نہ ہو، کم از کم کچھ لے کے
कुछ लिख के लाएं कि ये हमने काम किया है, इस काम की बुनियाद पे हमें वोट चाहिए। पार्टियां खिदमत करने के लिए और लोग काम करने के लिए आते हैं। आपका काम है वोट दिया, हमें जिताया, वो आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हम आपके वोट का जो कर मेज़बान हूँ, वो बैठे बैठे एक मेरे बात जहन में आ गई, पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं है, लेकिन कर देता हूँ। वो एक नारा सुना था, नाराय 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 भुट्टो, तो जवाब आता था जिए महाजिर जिए भुट्टो। आज मेरे जहन में आ गया, नारा लगा रहे थे कि मलीर का भुट्टो नज़ीर भुट्टो। मैं कहता हूँ मलीर का भुट्टो बशीर भट्ट नज़ीर भुट्टो। मेरे ख्याल में बशीर असफा वेलफेयर असफा और कैसर भट्ट साहब, शौकत मक्सी कहाँ है? नीचे बैठा हुआ है। शौकत मक्सी, हाजी कादिर बख्श, हाजी फरोज खान हो गया भाई। ये चांडी बिरादरी के बड़े हैं, अशरफ अब्बासी। अच्छा, अशरफ बट भाई साहब आज यहाँ यूसी टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद के भुट्टो है बैंस कॉलोनी में, तो उस हवाले से क्या कहोगे? बहुत शुक्रिया हाकिम भाई। बिल्कुल, आज हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है बैंस कॉलोनी कमर्शियल एरिया में। नज़ीर अहमद भुट्टो साहब और पीएस के अहदेदार, अपने जनरल सेक्रेटरी रसूल खान सवाती साहब और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जान मरवत साहब, नाम माजरत में थोड़ा भूल गया। मिलन का प्रोग्राम दिया और बैंस कॉलोनी कैटल कॉलोनी के जो मसाइल हैं उनके बारे में क्या कहोगे? ये ईद मिलन पार्टी दी है बशीर भट्ट साहब चांडिया बिरादरी ने, और हम सारे पीपल्स पार्टी के दोस्त आए हैं। और ये एक मिलने का बहाना होता है, तमाम पार्टी के लोग बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, मिलने हैं, ईद मिलन में मिला जाता है और पार्टी के लोग एक दूसरे से मेलाप का बहाना है। आज बैठे हैं सारी पार्टी। मैं चाहूँगा, चूँकि सब हो चुके हैं, मैं चाहूँगा कि आपके दरमियान और चेयरमैन साहब के दरमियान कमाल वाली दीवार हाई ना रहे, तो भरपूर तालियों में खड़े होकर تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم। उनको नए तरीके से वो करें। और यहाँ इस्माइल भी बैठा था, जनरल कौंसिल वार्ड का, नमाज पढ़ेंगे। तो ये मैं बैठा के, और अभी एक यहाँ कासिम टाउन का इशू था, कासिम टाउन वाले दोस्त बैठे हुए हैं। हर इंसान अपनी उम्मीद के साथ आता है। मुझे सारे उंगली मैं वो हकमुल, आप देखे हिमायती न्यूज़ हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ जिसके ज़िला मलीर की बात करूँ, रोड नंबर 8 और 7 के बीच की, और ये कमर्शियल एरिया है जिसको कमर्शियल एरिया कहते हैं। यहाँ कटल कॉलोनी और बैंस कॉलोनी की आवाम के लिए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की आमद हो रही है। प्रोग्राम सजरा है 12 मार्च से आज 2026। तकरीबन मैंने फाइनल करवा दिए। वो स्कीम है कुछ 44 करोड़ की, अब 23 करोड़ का ये रोड चाहिए भी, उसके बारे में सिर्फ बताओ। देखें, तब्दीली पीपल्स पार्टी हमेशा करती है। आपका सवाल है कि पहले काम कम हुआ जी। अगर कम भी हुआ उस वक्त, अभी ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, लेकिन कम जो हुआ वो भी पीपल्स पार्टी ने किया, किसी और ने तो कम भी नहीं किया ना। मतलब कुछ न जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने करवाया। लेकिन मैं आया हूँ, तेज़ी इसलिए लाई है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे काम करवाया जाए।
اور इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मिल के काम करेंगे। पीपल्स पार्टी हम सारे साथ हैं और जहाँ जहाँ पे कमज़ोरियाँ हुई हैं उसको ठीक करवाएंगे और अभी जो काम तेज़ी है इसमें मज़ीद तेज़ी लाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी बहुत शुक्रिया। करवाए आपको चाहिए कि आप ये चारों वार्डों में हमारी यूसी के खास तौर पे उस पर आप नजर रखें। बहुत सारे मसाइल हैं और आप तक हो सकता है वो बातें न पहुंचती हो, लेकिन आज हमारे पास वक्त नहीं है कि अपने सारे मसाइल आपको पेश करें। इंशाल्लाह कभी रूबरू हूँ। केटल कॉलोनी का हक है, किसी और का हक नहीं है। इसके बावजूद मैं 20 दिन सस्पेंड रहा, 20 दिन के बाद दोबारा केस लड़ा और कोर्ट सतोरी से मैं वो कोर्ट जीत गया केस कि आप हक पे हैं, वो गलत है। इन दिनों तक आप यकीन रखें कि आपसे मिलूं या ना मिलूं, आपका हक किसी को खाने नहीं देंगे, आपके हक को बेचेंगे नहीं, आपके मफाद को खराब नहीं करेंगे। अगर अच्छा नहीं कर सकूंगा तो जितना हो सकेगा बुरा कभी नहीं करूंगा, वफा करने का आदी रहूंगा। आज मुझे कोई लालच नहीं है, आज कोई वोट नहीं लेना, बहुत दूर है वो से, लेकिन चाहता हूँ कि लोगों को खिदमत हो, लोगों का एतमाद बहाल हो पीपल्स पार्टी पे, नुमाइंदों पे, हम पे, कि हम आपकी खिदमत कर सकते हैं, कोई और पार्टी आपकी खिदमत। तो मुझे फर्ज बनता है कि मैं वो काम करूं जिस काम में मेरे लोगों का फायदा हो। जितना भी हमारे पास बजट है, जितना भी मेरा सोर्सेस हैं, तमाम के तमाम मैं ईमानदार से कहता हूँ, जितना टाइम मैं अपने बच्चों को नहीं देता इतना टाइम मैं टाउन इब्राहिम हैदरी को देता हूँ। ये अल्लाह गवाह है। मलीर का भुट्टो। तो मकसद सिर्फ ये है कि लोग इतना इत्मीनान करते हैं। मैं जब ये देखता हूँ कि यहाँ जो मायूस होकर बैठ गए थे रहमतुल्लाह कलानी जैसे लोग सपोर्ट नहीं करते तो फिर मैं काउंसलर कैसे बना? ठीक है। और आपकी मेहरबानी से 11 गलियों में पेवर का काम हुआ, आपकी सरपरस्ती में सेवरेज के काम हुए, गलियों के काम हुए। कोई भी आया हो तो ये उनको महसूस हुआ होगा कि जहाँ बड़े लोग चैम्बर में और मेरे ऑफिस में बैठे होते हैं वहाँ चप्पल ना पहनने वाला, कपड़ा फटा हुआ इंसान भी वो साथ बैठेगा, क्योंकि हम एक हैं, हम इंसान हैं, हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। उनकी भी इज्जत उतनी है जितनी दूसरों की है। साथ चलेंगे। जी भुट्टो, जी अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। लिखवाई थी वो 2 गलियां, वो इंशाल्लाह अभी शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में ही। 2 गलियों का पेवर आपको जल्दी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 हफ्ते के अंदर ही वो पेवर का काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बाकी एनआईटियाँ जितनी हैं वो सारी खुल जाएंगी, आपके काम शुरू हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि गैस का काम बता रहे हैं कि वहाँ गैस का कोई प्रॉब्लम है कच्ची आबादी में, उस गैस के लिए कल मेरे पास कि मैं इस भैंस कॉलोनी को, जो पहले इतने लोग काम करते थे वो कहाँ हैं, उनकी ज़रूरत है। यहाँ भैंस कॉलोनी दूध का बहुत बड़े बिजनेस है, इनके लिए अलग इंतज़ाम होता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जब इस हद तक जाके मैं दिफा कर सकता हूँ भैंस कॉलोनी का, तो फिर आपको यकीन होना चाहिए तो छोटी छोटी चीज़ें तो रुकावट बनी नहीं सकती, इतनी बड़ी चीज़ों को मुंह दे सकते हैं तो छोटी छोटी चीज़ कोई मसला ही इसी रोड के लिए ये बशीर के रवासी हो। अस्सलाम वालेकुम जी भुट्टो। आज 1 हफ्ता पहले मुझे कहा गया कि आप एक ईद मिलन पार्टी रखते हैं, उसमें आप आए। इतवार का दिन मेरा मसरूफ ज़्यादा होता है, 1 घंटा लेट हो गया तो स्टेज से भी पूछ रहे थे कि आप लेट हो गए हो। मुझे नहीं था पता कि इतने लोग यहाँ के टाइम के पाबंद हैं, टाइम पे आ जाते हैं।
आइंदा के लिए मुझे पता चल गया कि यहाँ के लोग टाइम के पाबंद हैं, इसलिए मैं भी इंशाल्लाह टाइम पे आऊँगा। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्पीचेस में हुई। बहुत सीनियर दोस्त पार्टी के बात कर चुके और ये बात इन्होंने की। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।